Samniji, Bandami Namaswamy, Jan Janendra to all the friends, and welcome to the very first Zoom meeting held by Jain Ashram. Due to Corona pandemic, we haven't been very active for the last 10 months or so in Jain Ashram. But after having all this fearful and personal experience of having Corona, there is some blessing in disguise that Zoom has come to the rescue, and many lectures have been arranged by different people over the last few months. Samniji, both Samniji, Dr. Pratibha Pragya ji and Swarn Pragya ji have held many seminars and sessions during Piyushan Perv and Das Lakshan, and many people from Birmingham and around have joined, and I hope you benefited from it, but I did. So to continue with that, so Dr. Samni Pratibha Pragya ji volunteered to help us to keep the Jain Ashram active. So she has given her time, which is very difficult for her because she's so heavily committed. So she's going to give us 1 hour every Sunday, 4 to 5. And my humble request to you all is, please take the benefit. It's not easy. If Pratibha Pragya ji can't do it, so Swarn Pragya ji can join. I think that's something they have to sort it out. And to start with, this is only 15 to 20 minutes meditation, followed by Bhaktambar's Ucharan, Shuddh Shlok, and then she will explain and people can learn. And Archana is one of the teachers in another program on Bhaktambar, and there are 1 or 2 other people. Arpita is also. So we are very lucky to have these 2 people as well on the thing. The progress made by JBB in London is tremendous, and the credit for that really goes to not what's the name, Basubai, but on top of that, it's Pratibha Pragya ji. And without her, the center and we will be lost. And now we have them, we must make the best while she's here. As it's only 1 hour session, so if you can start exactly at 4 o'clock, so we don't waste any time, if you can join 5 minutes earlier. Today is the first session, we're having some technical hitches, please forgive us, and please bear with us. My special thanks go to Archana for taking the lead on this, and Manishi for setting up all the Zoom. And I hope that during the meeting, you will keep your mic muted. Before any further ado, let me hand it over to Samni, Dr. Pratibha Pragya ji. Samni ji. वीतराग परमात्मा महावीर को नमन, अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। भाइयों और बहनों, बर्मिंघम जेवीबी का ऐसा लगता है ब्रदर सिस्टर का संबंध है। जैन आश्रम बहुत पुराना आश्रम है, यूके की एक ब्यूटी है, नेम है, हिस्ट्री है, और मैं सोचती हूँ कि आप सबको इस ग्रेट हिस्ट्री को आगे बढ़ाना है। जब तक युवा पीढ़ी नहीं जुड़ती है, तब तक हम इसको नहीं आगे बढ़ा सकते। तो हम आपके डोर स्टेप पर अवेलेबल हैं। जब भी आपको कोई भी प्रकार का कार्यक्रम चाहिए, जेवीबी इज ऑलवेज रेडी फॉर। और जब 40th आपका एनिवर्सरी था, तो हमने रिक्वेस्ट किया, प्रेक्षा मेडिटेशन का सेंटर भी वहां खोला गया, और कुछ कारणों से इसको रेगुलरिटी में नहीं ला सके, लेकिन मुझे अब लगता है कि जूम ने बहुत सारे रास्ते हल कर दिए हैं, और उसके लिए हम अभी वीकली शुरू करते हैं कि वीक में एक दिन आपको संडे 4 बजे से 5 बजे का समय दिया जाएगा। और बेस्ट शुरुआत हुई है कि नवरात्रि में शुरुआत हुई है, तो नवरात्रि में स्टार्ट की हुई चीजें भी अच्छी आगे बढ़ती है। तो मैं जैन आश्रम के प्रति और जैन आश्रम की कमेटी के प्रति और जैन आश्रम के वॉलंटियर्स के प्रति, सबके प्रति शुभकामना करती हूँ कि आप लोगों ने जो एक ऐसा आश्रम आपको मिला है,
और धीरे धीरे आप इसको अपना ऐसा सेकंड होम जैसा बनाएं कि जब मन हो जा सकें। और अभी पेंडेमिक टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी आप इस रूप में इसको यूज करें कि जूम से ज्यादा एक्टिविटीज हो, जिससे आश्रम भी स्पॉटलाइट पर आए। और जिस भाव से आश्रम की स्थापना परम पूज्य आचार्य श्री सुशील कुमार जी स्वामी ने की, और उसके बाद आचार्य तुलसी ने भी हमें निरंतर बर्मिंगम को सिंचन देने के लिए, जैन आश्रम को सिंचन देने के लिए लगभग 1980 के बाद से समणी जी लगभग आते रहे हैं। और इसमें बहुत सारे परिवार, मैं किसी का एक व्यक्ति का नाम नहीं लूं, लेकिन सभी परिवारों ने दे कीप देयर हार्ट ओपन, देयर डोर ओपन, देयर होम ओपन फॉर समनी जी, टेकिंग, गिविंग एंड ड्रॉपिंग समनी जी, एवरीथिंग। तो आज मैं उसके भाव से भी, आपकी सेवा भावना से भी मैं अभिभूत हूं। और आप सोचते हैं कि समणी जी भी सबके हैं, सबके दिलों में और सबके काम आने वाले हैं, क्योंकि धर्म की जड़ सदा हरी होती है। चीजें बढ़ती है, घटती है, बिजनेस, व्यापार, काम, परिवार, ये वो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन धर्म तो धर्म है। धार्यते इति धर्म, दुर्गति पड़ता जीव ने, धार राखे ते धर्म उदार हो। तो ऐसे हम धर्म की कल्पना करते हैं, जो हर समय हमको धारण करे, हमको सपोर्ट दे, वही वास्तव में धर्म है। तो आज के दिन मैं शुरुआत करती हूं कि हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। और ध्यान के प्रयोग में हम ओम रीम अरहम नमः, ओम रीम अरहम नमः, क्योंकि आचार्य सुशील मुनि जी को भी बहुत प्रिय था ये मंत्र, और इसी को करते करते हम ध्यान में जाए। बी रेडी फॉर मेडिटेशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओम साउंड, ओ ओ ओ ओ संपेखै आपग मापैणम्। See yourself through yourself. For self-realization, practice Preksha meditation. Bring your awareness on the big toe of your right foot and the toes, sole, heel, up to ankle joint. Relax calf muscles, relax knee joint, relax thigh muscles, relax hip joint, up to hip joint. Bring your awareness on your both legs.
Relax, relax. Experience lower portion is relaxed. Now bring your awareness on the middle portion, abdominal part, stomach area, diaphragm, lungs, heart, whole front part. Relax, relax. Bring your awareness on your back, lower back, middle back, upper back. Relax, 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 relax. Both hands, palm, wrist joint, lower arm, elbow joint, upper arm, shoulder joint, neck and shoulder joint. Relax, 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 relaxed. Now bring your awareness on your throat. Deep relaxation. Relax your vocal cord. Relax your chin. Face, whole face, up to forehead. Mouth, nose, eyes, cheeks, ears. Relax, relax. Relax upper portion of the head, middle portion of the head, lower portion of the head. Relax, relax. Now bring your awareness on your whole body. Try to feel relaxed body, all the muscles relaxed. Relaxed. Now bring your awareness on the tip of the nose. Om. Middle point of the eyebrow, Reem. Middle portion of the forehead, Arham.
top of the head, Namah. Om Reem Arham 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 Namah. Try to repeat the mantra in your mind. Om on the tip of the nose, center of vital energy. Reem, middle portion of the eyebrows. Darshan Kendra. Arham, center of enlightenment, middle portion of the forehead. Namah, on the top of the head. Jnana Kendra. Om Reem Arham Namah. Om Reem Arham Namah. Take 2-3 long rhythmic breathing, full of energy and peace, happiness and bliss. Charge yourself with positive energy. Now conclude the meditation session by rubbing your palm and charging yourself. Om Arham, Om Arham, Om Arham. Priksha meditation session over. Now, let me share one. वीतराग परमात्मा महावीर को नमन, आदिनाथ भगवान को नमन, आदि जिनंद जिनकी अनेक स्तुतियां हुई है और उन स्तुतियों में सबसे फेमस यानी वर्ल्ड वाइड फेमस है भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र जिसके बारे में आप देखिए इतिहास होता है और इतिहास से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए मैं ले चलती हूं आपको 6th 7th century, exactly the middle point of 6th 7th century. King Harshavardhan was
राजा राजा हर्षवर्धन का समय था। और आप जानते हैं हर इंसान की अपनी अपनी खूबी होती है। कोई संगीत प्रिय होता है, कोई आर्ट प्रिय होता है, कोई भोजन की नई डिश के लिए प्रिय होता है, कोई नए नए कपड़े पहनना चाहता है, कोई नए दागिने नए ज्वेलरी पहनना चाहता है, किसी को रीडिंग का शौक है, किसी को डांस का शौक है। सो अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, ये पुरुष अनेक चित्त वाला होता है। तो राजा हर्षवर्धन, जिसको कला, संस्कृत, साहित्य और उसके साथ मंत्र, यंत्र, तंत्र, साधना, सब चीजों में बहुत रुचि थी। उनका मन रहता था कि हमारे दरबार में कुछ विशिष्ट हो। और आप जानते हैं क्वालिटी के बिना तो कुछ विशिष्ट होता नहीं। क्वालिटी और क्वालिटी के साथ कई कई बार आप जानते हैं चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार का भी बड़ा प्रभाव होता है। और जो रिलीजियोसिटी की बात आती है वहां चमत्कार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि भाई ये हो गया वो हो गया। तो इस प्रकार चमत्कार को भी लोग जीवन में महत्व दिया जाता है। यद्यपि साधना के क्षेत्र में जो नितांत पर्सनल चीज है वहां चमत्कार को इतना कोई बड़ा महत्व नहीं, लेकिन लोक जीवन में, लोक रंजन में और लोक प्रसिद्धि में, लोकाचार में चमत्कार को भी महत्व दिया गया है। तो आचार्य मानतुंग, इनका भी फैमिली बैकग्राउंड है कि ब्राह्मण क्षत्रिय क्लैन, कुछ मिक्स क्लैन भी होते थे। तो ब्राह्मण टर्न्ड एज ए क्षत्रिय, यानी ऐसे परिवार जो ब्राह्मण हैं कुल से, लेकिन काम किस प्रकार का, यानी वीरत्व का काम, वैसा काम करने लगे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय क्लैन के रूप में उनका जन्म हुआ। और उनके इतिहास के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उनकी माता और पिता का जो नाम है वो गुरु परंपरा है। यानी अब देखिए जो भक्तामर स्तोत्र है, आचार्य मानतुंग को दिगंबर परंपरा में भी बहुत मान्यता है, श्वेतांबर परंपरा में भी बहुत मान्यता है। तो उन्होंने कहा जाता है कि दिगंबर मुनि परंपरा को ग्रहण किया था। और उनके गुरु अजित सिंह थे। और उसके बाद पहले वो यानी दिगंबर थे, और कहा जाता है कि बाद में वो श्वेतांबर हुए। यद्यपि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इतिहास की इन बातों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन यत्र तत्र जो उल्लेख मिलते हैं। और हमारे एक साध्वी संघमित्रा जी हैं जिन्होंने प्रभावक आचार्य पर बहुत बड़ा काम किया है। एक बहुत बड़ा वॉल्यूम उन्होंने लिख दिया है, जैन धर्म के प्रभावक आचार्य। और ये वॉल्यूम ऐसे ही नहीं लिखा है, बिल्कुल नामूलम लिखिते किंचित, उन्होंने पूरे एविडेंसेस दे दे करके उन्होंने इसको बहुत ही प्रभावक चरित्र और प्रभावक चरित्र को प्रभावशाली ढंग से लिखा है। और हम कई बार उनको कहते हैं महाराज आपने एक पुस्तक लिखी उसमें ही आप तो अमर हो गए। तो ब्रह्म क्षत्रिय, उनके पिता का नाम धनदेव था और माता के नाम की कोई ग्रंथ में सूचना नहीं मिलती है। तो लक्ष्मीधर सेठ थे। और उनकी यानी मानतुंग की एक बहन भी थी, और वह भी यानी श्वेतांबर परंपरा में थी। तो कहा जाता है कि उसने भाई को प्रभावित किया। पर रियली हम इस चर्चा में ज्यादा नहीं जाएंगे कि कौन किसको प्रभावित करता है
और कौन किसको नहीं प्रभावित करता है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि परम प्रभावक सूर्य के समान मुक्ति दूत आचार्य मानतुंग बहुत ही प्रभावशाली हुए कि दोनों ही परंपराएं ये मेरा है, ये मेरा है। उसी बहुमान से दोनों परंपराएं इन्हें स्वीकार करती है। और जब राजा हर्षदेव के वहां इनका चातुर्मास था और उस समय वहां उनके दरबार में वेद वेदांगों से परिपूरित अनेक विद्वान थे, मयूर और बाण जैसे कवि थे। और कहा जाता है पुरातन संग्रह के अनुसार बाण और मयूर इनमें ससुर और दामाद का संबंध था। तो एक बार उनको किसी प्रकार का कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ का रोग हो गया। और कहते हैं कि जब वो आए राजसभा में तो अपने शरीर को ढककर आए थे। और जब ढककर आए तो कवि बाण ने उनका उपहास कर दिया। कभी कभी मजाक में की हुई बात भी बड़ी चुभ जाती है, और उनको चुभ गई और वे सीधे दुखी होकर के कवि मयूर राजसभा से घर आए और घर आकर के सूर्योपासना में बैठ गए, सूर्य की उपासना करने लगे। और शार्दूल विकृत छंद में वृत्त में उन्होंने श्लोक की रचना की। और कहते हैं कि 5 श्लोकों की रचना करने से सूर्य देव प्रसन्न हुए और उनका कुष्ठ रोग, कोढ़ का रोग संपन्न हो गया। और कहते हैं कि उन्होंने एक बार बाण कवि के भी हाथ पैर काट दिए गए थे। तो बाण कवि के हाथ पैर को वापस जोड़ने के लिए पारिवारिक संबंध था, तो उन्होंने चंडी शतक की रचना की और चंडी देवी को प्रसन्न करके उन्होंने 100 श्लोकों के माध्यम से उनके हाथ पांव को वापस जोड़ दिया। तो आज सुनने में हमें कहानियां जैसी लगती है, लेकिन मंत्र का प्रभाव अचिंत्यो ही मणि मंत्र मोषधि नाम प्रभाव है। मणि मंत्र और औषधि का प्रभाव अचिंत्य होता है। तो राजा हर्षदेव उनका मंत्री था, वह जैन था। तो एक दिन राजा ने कहा कि जितनी विद्याएं हैं, चमत्कारिक विद्याएं और ज्ञान का अखूट खजाना तो ब्राह्मण जाति में है, और किसी के पास कोई ऐसा नहीं, सभी ऐसे मांगते हैं, खाते हैं और पेट भरते हैं। जब हर्षदेव के मंत्री ने ये बात सुनी तो उसने कहा, भूमिनाथ, ये धरा वसुंधरा है। वसुंधरा यानी रत्न गर्भा है, इसमें बहुत सारे रत्न हैं, अमूल्य भंडार भरा पड़ा है। जैनों में भी चमत्कारिक विद्याओं का अतिशय ज्ञान है, यद्यपि वो कौतुकपूर्ण जिज्ञासाएं नहीं पूर्ण करते, वो नहीं दिखाते हैं चमत्कार, लेकिन उनके पास भी है। राजा ने मंत्री से कहा कि जाओ तुम अपने आचार्य को ससम्मान बुला के लाओ। और बुलाया गया। तब राजा हर्षदेव ने क्या कहा, हे संत श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण कितने प्रभावशाली है। एकेन सूर्य माराध्य स्वांगात रोगो वियोजित है, अपरस चंडी का सेवा साल्लोभे कर क्रमो। कि देखो, एक ने तो सूर्य की आराधना से कोढ़ रोग को ठीक कर लिया है, और दूसरे एक पंडित ने चंडिका की आराधना करके अपने कटे हुए हाथों और पैरों को जोड़ दिया है। तो आचार्य मंतुंग बोले कि महाराज, हम निष्प्रिय मुनि हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम यहाँ चले और वहां चले। हम तो अप्रतिबद्ध बिहारी हैं, इन चमत्कारों में नहीं फंसते। लेकिन राजा, हम
भौतिक उपलब्धियों के लिए अपनी साधना को इसमें नहीं लगाते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति, कर्म का क्षय। तो मानतुंग की बात सुन करके राजा हर्षदेव बहुत गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, मोक्ष किसको दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं इनको तुरंत 44 तालों में और कहीं कहीं 48 तालों में कहा जाता है कि बंद कर दो, ऐसा आदेश दे दिया। और आप जानते हैं राजा पावरफुल होता है, राजा के आदेश से उनको 44 ऐसे तालों से बांध करके और इस रूप में बांध करके एक भीतर की कोठरी में ऐसे सेल में रख दिया। और जहां कहते हैं जब समस्या आती है तो समाधान भी आता है। और ये जैन शासन की प्रभावना का ऐसा प्रमुख मुद्दा बन गया था, अन्यथा यही कहा जाता कि इन जैनों में कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति की नजाकत को समझ करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने आदिनाथ भगवान को याद किया। आदिनाथ भगवान यानी आदि कश्यप यानी आदिनाथ, ऋषभ भगवान। और कहा जाता है कि ऋषभ ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं। ऋषभ का वर्णन वैदिक साहित्य में भी मिलता है, भागवत में भी मिलता है। तो ऋषभ एक योगी हुए हैं। और ऋषभ की स्तुति स्तुति में क्या किया जाता है? स्तुति में, स्तवन में, भक्ति में स्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यपि गरीयसी। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने लिखा कि जो स्वरूप का अनुसंधान कराए वह ही महत भक्ति होती है, महान भक्ति होती है। और भगवान आदिनाथ तो सिद्ध अवस्था में है, तो शुभ यानी ऐसी शुभ अवस्था में है जहां न रोगम न शोकम न अंगम न गंगम न कर्मम न माया न जालम, कुछ भी नहीं है। ऐसे भगवान का बिल्कुल ध्यान करते हुए लीन हो गए हैं और लीन होकर के स्तुति करते जा रहे हैं। और जो बंधी हुई श्रृंखलाएं हैं उनके ताले धीरे धीरे टूट रहे हैं और एक एक श्लोक की रचना और एक एक ताले से मुक्त होते जा रहे हैं। और कहते हैं कि जब 44 और 48 श्लोक की रचना हो गई और वो रचना करके एक एक ताले से मुक्त हो करके अब वो उस कोठरी से बाहर निकल करके एकदम उदीयमान सूर्य के समान तेजस्वी तेजो दीप्त आचार्य मानतुंग राजसभा में आकर खड़े हो जाते हैं। और राजसभा में जब वो आकर खड़े हो जाते हैं और राजा हर्षदेव बहुत प्रभावित होता है और बोलता है, मुनि आपका समता भाव अपूर्व है, आपका समर्पण अपूर्व है, आप धन्य हैं और मैं भी धन्य हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मेरे राज्य में आप हैं, मेरी राजसभा में आप हैं। और ऐसा निर्ग्रंथ प्रवचन जैन धर्म है, तो मैं सचमुच धन्य हूं और मैं आपसे व्रतों का स्वीकरण करता हूं और सारे विस्तुल्य पदार्थों का त्याग करके मुझे आप जैन धर्म की श्रावक दीक्षा प्रदान करें। और कहा जाता है कि राजा हर्षदेव ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार ऐसे महान आचार्य जिनके बारे में दोनों ही परंपराएं अपना अपना मानती है, तो ऐसा विशिष्ट ऐसी रचना जिसको देख करके, और आप देखिए काव्य प्रतिभा भी ये कोई ऐसा सामान्य नहीं है, इसकी एक एक लाइन में मंत्रों का गुंफन है। और मानतुंग की जो काव्य रचना है आचार्य मानतुंग ने,
ऐसी विशिष्ट भावधारा से लिखा, ऐसी धारा प्रवाहित हो गई, भक्ति रस का निर्झर बह गया। और आज भक्तामर के साथ भयहर स्तोत्र भी मिलता है। तो दोनों ही रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इस श्लोक से भी हमें आभास होता है, क्योंकि इसका नाम तो हो गया भक्तामर, भक्त अमर, जो बिगिनिंग का फर्स्ट टर्म है उससे इसका नाम हो गया। तो शायद ये प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ कहाँ तो आदिनाथ भगवान का नाम है, और कहाँ क्या, कैसे कह सकते हैं कि ये आदिनाथ की स्तुति है, कि नेमिनाथ की स्तुति है, या भगवान महावीर की स्तुति है? इतनी दूर क्यों जाएगा कोई? तो आप देखिए, मैं इस प्रश्न का भी समाधान करूंगी। और साथ में अब देखिए, इस प्रकार की ये रचना है, ये बसंत तिल का एक मीटर है, छंद है, बसंत तिलका में हुई है। और आप जानते हैं कि भक्तामर का पाठ करते करते भी हमारी आत्मिक शांति, हमारा मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता कितनी बढ़ जाती है। जो इसका पाठ रोज करते हैं, जो इसको सीखते हैं, अपने कंठ में धारण करते हैं, तो ये भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, और सिमली, उपमा, रूपक, अलंकारों की दृष्टि से कहा जाता है कि एक रूप तो हमारा अपना होता है, लेकिन कुछ लोग जैसे एडोरेशन के बाद मेकअप भी ब्यूटीफाई करता है, अलंकार भी ब्यूटीफाई करते हैं, और अच्छे कपड़े भी ब्यूटीफाई करते हैं। तो वैसे ही ये रचना ऐसी रचना है जिसमें बहुत सारे ऐसे उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि विविध अलंकार है। यानी कोई ऐसी वैसी रचना नहीं, अलंकारों से सुसज्जित है। और इसकी जैसे जैसे हम इसको गाते हैं तो जैसे घी जैसे फ्लो करता है। तो हम आज भक्तामर की इस आराधना में शुरू करते हैं। और पहला श्लोक लूंगी, और उसमें आप देखिए, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। तो जैसा नाम की सिद्धि, पहला अक्षर भक्तामर। और आप देखिए, प्रणत मौली मणि प्रभाणा, प्रणत मौली मणि प्रभाणा। Bhakt means devotee, Moli means crown, Amar means Deva, Mani means jewels, Pranat means bowing down, Prabhana, Mani Prabhana, the luster of the jewels, Udyotakam, brighten, Vitanam, expansions, Papam, sin, Dalitam, destroying, तमो डार्कनेस, एंड भव जले यानी संसार रूपी समुद्र में, पतताम पड़ते हुए, इन द ओशन, ड्राउनिंग इन द ओशन, जनानाम पीपल, युग आदो यानी इन द बिगिनिंग ऑफ द एरा, आलंबन मीन्स, आलंबन मीन्स which is support, and जिनपाद युगम means the तीर्थंकर के both feet, सम्यक प्रणम्य, respectfully,
प्रणम्य, bowing down। तो आप देखिए ये रचना, और इसकी हिंदी में कहा गया है कि कैसे हैं भगवान। भगवान जिनेंद्र तो सबसे पहले युगादौ, यानी युग की आदि में जो हुए, युग की आदि में जो हुए हैं ऐसे भगवान। तो युग की आदि में इस अवसर्पिणी काल, द टाइम इज साइकिल, तो टाइम साइकिल में दो टू पार्ट्स होते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार ये जो अवसर्पिणी काल है, इस अवसर्पिणी काल की युग की आदि में जो पहले तीर्थंकर हुए, युगादौ सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादौ, जो युग की आदि में पहले तीर्थंकर हुए, उनको प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके। तो आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे स्पष्ट होता है, कहीं पर भी नाम नहीं लिखा है कि भी ऋषभ ने किया, ये ऋषभ की स्तुति है, लेकिन इससे पता चलता है कि ये भगवान आदिनाथ की स्तुति है। तो कैसे हैं भक्त अमर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, ऐसे भगवान जिनके चरण कमलों में, अमर माने देवता। देखो मनुष्य, मनुष्य को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और मनुष्य यदि भगवान की पूजा करे, चलो भाई करते हैं, लेकिन देवता भी करने आते हैं। तो देवता जिनके मुकुट रूप, मुकुट की जो मणियां है उसकी प्रभा से जब वो झुकते हैं नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, तो उससे क्या है, जो मणियों का प्रकाश है, उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। लेकिन जब वो आपको प्रणाम करते हैं तो आपके चरण कमल की भी आभा निकलती है, और वो आभा जब वो आपको प्रणाम करते हैं तो वो ऐसी आभा, एक तरफ तो मणियों की आभा है, मुकुट की मणियों की आभा, एक प्रकार से दूसरी आभा भगवान के चरणों से निकलने वाली आभा, मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, वो संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाली है, और पाप रूपी तम यानी अंधकार का नाश करने वाली है। और हे भगवान, आपको प्रणाम करके, अच्छी तरह से प्रणाम करके, मन से प्रणाम करके, भाव से प्रणाम करके, आजकल हम प्रणाम करते तो लोग झुकते थोड़ा सा ऐसे, कोई घुटना छू देता है, कोई कंधा भी छू देता है, ऐसे भी करते प्रणाम। लेकिन ये जो चरणों में मस्तक झुका करके जो पंचांग जैनों की विधि है प्रणाम करने की, वो महत्वपूर्ण विधि है। पंचांग विधि, दो कंधे और दो घुटने चार और मस्तक नमा करके, वो पंचांग जैनों की विधि है, पंचांग प्रणति पूर्वक। तो भगवान को देवता प्रणाम करते हैं, हे प्रभु आप युग की आदि में हुए, और कैसे हैं आप भव जल में पड़ते हुए प्राणियों के लिए आलंबन भूत हैं, सपोर्ट हैं। तो इस प्रकार ये आलंबन भूत ऐसे प्रभु आपकी स्तुति मैं करती हूँ। तो हे भगवान, आपके योर फीट, योर बोथ फीट आर like a support for the worldly being, those who are in the whirlpool of the sansara. But you are the first Tirthankar of this era, and you are venerated by the all divine beings. And when divine being bow down to you at that time, O Rishabh Bhagwan, the luster of those jewels and the luster of Bhagwan's angusht or nakhun, the big toe and its nail, is making a big difference, destroyer of the darkness, and you are like a support or a path for those who are drowning in the worldly sansara. So, O Bhagwan, I offer my reverential prayer in the feet of Adinath Bhagwan Rishabh, the first Tirthankar, propagator of the religion at the beginning of the era. तो ये भगवान, और आप देखिए
भक्तामर की जो चित्रात्मक संयोजना है, उसमें भगवान के जो चित्र बनाए गए हैं, गृहस्थ भी नमस्कार करते हैं, लेकिन उनको और भी कौन, इधर इंद्र इंद्राणी, डिवाइन बीइंग्स, देवी देवता, वो भी नमस्कार कर रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान को नमस्कार किया जाता है, तो भगवान को नमस्कार कहाँ किया जाता है? भगवान को नमस्कार करने के लिए वो क्या करते हैं कि भगवान को नमस्कार कहाँ करते हैं? भगवान को नमस्कार करने के लिए उनके चरणों को ही क्यों लिया है? क्यों नहीं माथे पे नमस्कार कर लेते, और कहीं नमस्कार कर सकते थे, चरणों में नमस्कार क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चरणों में नमस्कार इसलिए किया गया है, पैर हमारे आधार होते हैं। पैर, आप जानते हैं कि पैर धरती पर टिकते हैं। जो भी बेबी जन्मता है, सबसे पहले वो जब भी खड़ा होकर के चलना सीखता है, तो वो पैर धरती पर टिकाता है। तो और आप जानते हैं कि ये धरती माँ, इसमें बहुत सारी एनर्जी है। अर्थ में इतनी एनर्जी है, यदि आप देखें, एक वाइटल फोर्स होती है, एक ग्रीनरी की फोर्स होती है, और एक एनर्जी ऐसी भी है जो हमारी अर्थ की एनर्जी है। सो अर्थ की एनर्जी, तो जो भी धरती पर पांव रखता है, और जैन परंपरा में जब तीर्थंकर संन्यास्त होते हैं, राजकुल के व्यक्ति हैं, लेकिन वो अपने जूते मोजे सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी पादुकाएं, इसलिए पैरों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि डायरेक्ट कनेक्शन विद द अर्थ, धरती से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और ऐसे देखा जाए तो इस ह्यूमन बॉडी की जड़ के रूप में पैर स्वीकृत है। तो हम देखें कि बहुत बार लोग ध्वजा को देखते हैं, लेकिन नींव को नहीं देखते। नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे ही जड़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि जड़ें, जब तक जड़ों का सिंचन नहीं होगा। मम्मी पापा हॉलिडे में जा रहे थे, और उन्होंने दोनों बच्चों को कहा कि भैया हम तो जा रहे हैं, तुम घर पे हो, और अपना गार्डन जो स्पेशली जो फ्लावर पॉट्स हैं, उसमें तुम जरूर पानी देना, वो ड्राई ना हो जाए। वो रोज पानी देते हैं, कुछ पानी पत्तों पर, कुछ पानी फूलों पर छिड़क देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जड़ को पानी अच्छी तरह से नहीं दिया, बस कुछ छींटे फूलों पत्तों पर डालते रहे। और जब 2-3 वीक के बाद मम्मी पापा हॉलिडे से आए, तो उन्होंने देखा कि फ्लावर पॉट सूख गए हैं, फूल मुरझा रही हैं, विदर्ड हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, अरे तुमने क्या किया, पानी नहीं दिया? कि रोज दिया, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। तो कहा कि कहाँ दिया था? कि हम तो ऐसा थोड़ा सा पानी छींटा दे देते थे फूलों पर, आपने कहा ना फूल मुरझा न जाए, तो हम फूलों पर पानी के छींटे डालते थे। उन्होंने अपना माथा पकड़ा, अरे भाई, जब तक जड़ को नहीं सींचोगे तो फूल तक पानी नहीं पहुंचेगा, पत्तों तक पानी नहीं पहुंचेगा, टहनियों तक पानी नहीं पहुंचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जड़ को सींचा जाए। और उसी प्रकार आप जानते, एक्यूप्रेशर वाले लोग, रिफ्लेक्सोलॉजी वाले लोग भी कैसे कितने प्रकार के इस रूप में बताते हैं कि कभी कभी, अभी मैंने कुछ दिन पहले समनी स्वर्ण प्रज्ञा जी काफी अच्छा जानते हैं, तो मैंने उनको कहा, अरे यहाँ एक नर्व में दर्द आ गया। तो स्वर्ण प्रज्ञा जी ने कहा, अभी निकाल देती हूँ। तो मैंने कहा, देखो जोर से यदि आपने निकाला, और उन्होंने, मैंने कहा कहाँ से निकालोगे? कि पैर से निकाल दूंगी। मैंने कहा हाथ का दर्द पैर से निकाल दूंगी? तो फिर मेरे को और मेरा, आप सबको पता है कि एक पैर का लिगामेंट घुटने का उधर टूटा हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई मेनिस्कस फटी हुई है, लिगामेंट टूटा हुआ है, कहीं जोर से खींच दिया तो ये पैर मान लो है जैसा भी और कुछ गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं निकाल दूंगी, आप देखो। तो लकीली जब मैंने ध्यान दिया कि ये लिगामेंट वाला पैर तो नहीं है, इधर वाला राइट है, ये दूसरा पैर है। तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा मसाज किया, थोड़ा सा जैसे अपन कटके निकालते हैं वैसा किया, और थोड़ा सा रिफ्लेक्सोलॉजी का और मेथी दाना का कुछ प्रयोग किया। और मैं, इट इज अमेजिंग
कि वो नर्व दूसरे दिन थोड़ा सा आराम आया, तीसरे दिन और आराम आया, और चौथे दिन तक काफी आराम आ गया। तो मुझे लगा कि देखो, ये रिफ्लेक्सोलॉजी, ये जो एक्यूप्रेशर की दुनिया है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। और उसमें भी हमारे आंख, नाक, कान जो चित्र बना के दिखाते हैं, सब कुछ ह्यूमन बॉडी का पूरा नक्शा उसमें अंदर है। तो हमारे पैर कितने इंपॉर्टेंट है। यदि किसी के पैर शक्तिशाली नहीं, और तब मुझे समझ में आता है कि आपके चरणों में नमस्कार, चरणों को पकड़ लेना, चरणों में नमस्कार कर देना, यानी वहां सर्वस्व है। और इसलिए जो नमस्कार किया जाता है, और आप देखिए जब नमस्कार करते हैं चरणों में तो झुका जाता है, तो जो ईगो है वह भी झुकता है। और जैसे ही व्यक्ति झुकता है तो उसकी जो एड्रिनल ग्लैंड है, उससे स्रावित होने वाला एड्रिनलिन भी बहुत मैनेज्ड होता है। और ये हमारी भारतीय विनय की परंपरा है कि अहंकार का विलय हो, स्तुति, स्तवना, नमस्कार, प्रणाम तभी हो सकता है जब हमारा ईगो कम हो। ईगो कम होता है तो पैरों की ओर नमस्कार किया जाता है, ये भी ईगो को कम करने वाला है। सांख्य दर्शन में 5 प्रकार की इंद्रियां बताई गई जो वेल नोन है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। उसमें पैरों को भी स्थान दिया है कि पैर कर्मेंद्रिय है। पैरों से ही हम चल चल के कहां कहां तक पहुंचते हैं, तो पैरों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। वहां से हमारी बॉडी के सारे कनेक्शन बनते हैं। और ये पैर ही तो जहां पर भगवान को इंद्र स्वयं नमस्कार करते हैं, और भगवान के अंगुष्ठ से निकलने वाली आभा हमारे मन के अंधकार को नष्ट करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। और इस श्लोक से यानी आपने देखा कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसका भी व्यक्ति क्या उसको भी कम कर सकता है। अब देखिए इस श्लोक में इसमें कहा गया है कि यदि किसी को कोई भी समस्या है तो वह समस्या भी दूर होती है। और समस्या को दूर करने के लिए पहले श्लोक का आलंबन लिया जाता है। और पहला श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि उससे यदि कोई भी प्रकार की समस्या है तो इटसेल्फ ये सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करने वाला है। तो हम भगवान की स्तुति करें। और इंटरेस्टिंगली आदिनाथ भगवान का जो ये वर्णन किया गया है, ये वर्णन इतना विशिष्ट वर्णन है कि इस वर्णन में आप देखेंगे कि भक्तामर का जो एक एक श्लोक है उसके ऊपर भी विधान बने हुए हैं, उस पर भी पूरे मंत्रों की रचना की गई है, उसके भी रिद्धि मंत्र है, सिद्धि मंत्र है। तो आज के दिन नवरात्रि का विशिष्ट अवसर है, तो मैं पहले जो भक्तामर का पहला रिद्धि मंत्र है, तो बर्मिंघम के सभी घर, सभी भाई बहन, सभी परिवार रिद्धि सिद्धि से परिपूरित रहे। ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं रूं रों रः असी आ उ सा अप्रतिचक्रे विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तो इस प्रकार ये रिद्धि मंत्र परिपूरित भक्तामर का पहला श्लोक हमने पूरा किया। और 2-4 मिनट फिर मेरे पास है, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन रख सकते हैं। Thank you, Samnaji, for brilliant start. I hope everybody and the students appreciate it. अगर अब किसी को सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज समझी जी से पूछिए।
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन पूछिए। वंदामी हाँ अर्चना जी। जैसे हम पैरों का महत्व आप बता रहे थे, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पैर सीधे जमीन में नहीं लगा के रखने चाहिए? अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना पृथ्वी की, वो हमको प्रभावित न करे और हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा रहे, इसलिए उस टाइम हम कोई भी आसन आदि का प्रयोग करते। एको हो रहा है। एक बार म्यूट कर लें सब, फिर एक एक करके क्वेश्चन खोलें। हाँ जी वंदामी। तो इसलिए वो हमारा ध्यान अच्छी तरह से लगे, और उसके लिए उनका आसन, कुश का आसन या और भी आसन कोई भी, तो उस प्रकार के आसनों का प्रयोग किया जाता है ताकि हमको ग्रेविटेशनल फोर्स से विशेष बाधा न आए ध्यान में, उस दृष्टि से वो प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। तो ऐसे हम जैसे जनों देव पैरों की आराधना करते हैं, तो उसका महत्व अलग है, और मेडिटेशन में हम उससे ग्राउंड एनर्जी से डिस्कनेक्ट करें, वो अलग महत्व है। देखो ऐसा है कि यहाँ नमस्कार और चरण का महत्व है, और जो मेडिटेशन का स्पेशल ओकेजन है उसके लिए हम कोई भी आसन यूज करें तो वो अलग बात है। यहाँ जो आज बात हुई वो चरणों का महत्व है। जीवन, थैंक यू, कृतज्ञ स्मिता। वंदामी श्रवणी जी। हाँ कामिनी जी। ये जो आपने भक्तामर का मीनिंग बताया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके अंदर जो आपने जो वर्ड्स को ब्रेक डाउन किया था उसको शेयर कर सकते हैं क्या? बिकॉज एक बार में तो वो पूरा याद नहीं हुआ। ऐसा है, अर्चना जी शायद आपको शेयर कर देंगे। अर्चना जी आप पहले श्लोक, दूसरे श्लोक का, दूसरे का भी करके रखें ताकि लोग माइंड में कर लें। तो नेक्स्ट संडे भी मुझको वक्तव्य देना है, तो उससे आपको पहले से हो जाएगा तो अच्छा है। और हमारे पास जो प्रेयर पुस्तक है उसमें भी काफी अच्छी तरह से क्लियर किया गया है। अगर पहले से भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। जरूर जरूर। अब तो मैं सोचती हूँ जितने लोग जुड़े हैं ना, उनको ये भाव रखना है। और हमारे समणी स्वर्ण प्रज्ञा जी इज ए गुड टास्क मास्टर। वो सबको, मेरे में इतना वो कैपेसिटी नहीं है, उनका तो बहुत बहुत एनॉर्मस पावर है उनका। और अभी 9 दिन के लिए वो मौन है, तपस्या में है। तो जब भी वो आएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वो भक्तामर की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और आप सबको सिखाएंगे। और वैसे अर्चना जी अभी भक्तामर में उनको सपोर्टिव टीचर भी हैं, और एक कौन है, एक कोई और भी हैं, अर्पिता जी। तो अर्चना जी, अर्पिता जी, और अभी देखो बर्मिंगम जैन आश्रम को हमें एकदम बजिंग, वाइब्रेटिंग करना है। और हम यहाँ बैठे, आप जितना कहोगे वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। रमनी जी हम आपके बहुत आभारी हैं, आपकी हमेशा सपोर्ट रही है बहुत सालों से। तो मुझे अब तो लोगों को फायदा लेना है। हाँ, अब गंगा बह रही है, हाथ तो खुद ही धोने पड़ेंगे। सही बात है, सही बात है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो? और ऐसे सबको लक्ष्य बनाना है। वक्तुंबर का ऐसे रिकॉर्डिंग लगा के रखो। अभी तो क्या है, सुबह बजा लो, शाम को तो नहीं, 12 बजे, पर लर्निंग के लिए आप कर सकते हो। लेकिन अभी तो सबको लक्ष्य बना लो कि भाई मुझे सीखना है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक्
तले पततां जना